Hello and welcome back to my channel, that is Poles of Guidance. Now we are going to start the conjunction, that is our part of our parts of speech series. We are moving on to the part that is the conjunction. Okay, let's discuss first with its definition. What are conjunction? Conjunctions Conjunctions are a part of speech that is used to connect two different parts of a sentence, phrase and clauses. Okay, it means कि conjunction as parts of speech का एक part है जो क्या करते हैं, two different parts को कनेक्ट करने का काम करते हैं. ओके, लाइक सेंटेंसेस हो गए, फ्रेजेस हो गए, क्लॉजेज हो गए, इनको कनेक्ट करने का जो वर्ड्स काम करते हैं, दोज आर कॉल्ड कंजंक्शंस. So here we have some examples of conjunction like and, or, for, yet, although, because, not only, etc. Okay, these are the some kind of conjunctions that we have. Okay, let's discuss its kinds. So now we have like kinds में we have two kinds of conjunction. First we have this coordinate conjunction and the second we have this subordinate conjunction. Okay, let's understand first कोऑर्डिनेट कंजंक्शन. ओके, व्हाट आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हैं ये हमारे क्या होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट वी हैव दिस क्यूमुलेटिव कंजंक्शन. अब इसमें हमारे कुछ वर्ड्स आते हैं दैट आर एंड, एज वेल एज, नाउ, बोथ, एट्सेट्रा. We'll also understand it with an examples. Second, we have this alternative conjunction like either, or, neither, nor, or otherwise. Okay, these are the words जो alternative conjunction जिन्हें हम कहते हैं. Third, we have this adversative conjunction. अब adversative conjunction में we have this but, however, while, nevertheless, whereas. Okay. Fourth, we have this elative conjunction. Elative conjunction में we have for, therefore, so, then. Okay, let's discuss all these words with their examples. Like first we have this Riya and Alia are best friends. Okay, here we have used this and word. Riya और Alia दो हैं, that's why we have used friends. Okay, और यहाँ पर हमने जो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाई है दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल, बिकॉज जब भी हम दो लाइक पर्सन को एंड से कनेक्ट करते हैं वी ऑलवेज यूज़ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. Okay, let's move on to the another that we have is I tried many times but unfortunately I failed to do engineering. Okay, मैंने बहुत टाइम्स लाइक ट्राई करा बट दुर्भाग्य से मैं फेल हो गए इंजीनियरिंग करने में. ओके, सो हेयर वी हैव यूज दिस बट word, that is also a conjunction. Let's move on to this third that we have is our parents are worried about our future yet they don't show it. हमारे पेरेंट्स जो हैं दे आर वरिड अबाउट आवर फ्यूचर, फिर भी अब लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसको शो नहीं करते हैं, डोंट शो इट. सो हेयर वी हैव यूज दिस येट वर्ड. Let's move on to the another that we have is she as well as her friend is arrogant. Okay, now here we have used this as well as. अब she as well as her friend is arrogant. अब यहाँ पर जब भी हम as well as के साथ कोई भी like if we are connecting two person with as well as, ठीक है, जो दो चीज़ों को अगर हम as well as के साथ कनेक्ट करते हैं तो it consider as a singular. So that's why we have used a singular helping verb. Okay, is arrogant. Next, moving on to the fifth that we have is either you work hard or he will send you boarding school. So here we have the pair either or. Okay, जब हमें like दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है कि you have to choose one thing, otherwise दूसरी चीज़ जो है वो हो जाएगी. like either you work hard, या तो तुम हार्ड वर्क करो, और he will send you boarding school, नहीं तो क्या होगा, वो आपको बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे. ओके, इट इज़ यूज एज अ पेयर, और इसमें से दो में से किसी एक को चूज़ करना होता है. ओके, let's move on to that another that we have is I am good in cooking and stitching too. Okay, here we have used अब मैं अच्छा हूँ like good in
गुड एट होगा. ओके, हेयर वी हैव a mistake, that is in. good के साथ in नहीं आता, that we have already discussed in like phrase preposition. okay, so you can also check that video. I will add the link in the description of that preposition. okay, good के साथ at आएगा, not in. good at. okay, good at cooking and stitching too. here we have used to also. now we are moving on to the another that we have is 7. You need to leave early, nevertheless you missed your flight. ओके, आपको ज़रूरत है जल्दी जाने की, नहीं तो क्या होगा, you missed your flight. okay, here we have used this nevertheless. जब भी हमें we can like change it with but की जगह we can also use this nevertheless word. It's an alternative of that. okay, let's move on to the 8th that we have is it is cold outside, therefore wrap up well. okay, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो इसलिए अपने आप को अच्छे से कवर कर लो. ओके, wrap up well. therefore so का alternative भी है ये. okay, let's move on to the 9th that we have is 9th. it's time to go, so let us go home. okay, here we have used so. अब जो है ये टाइम है जाने का, तो अब हमें क्या है, जाने दीजिए घर पर. ओके, सो वी हैव यूज्ड हेयर एज अ कंजंक्शन. आई होप दैट दीज कंजंक्शन विल बी क्लियर टू यू ऑल. यू कैन like if you understand all the things that we have discussed here, and you can watch it again if you didn't understand. please let me know if you need something more explainable or something that can help you in your exams. you can let me know in the comment section below. okay, now we are moving on to the second that we have is that is subordinate conjunction. okay, subordinate conjunction is related to, अब जो subordinate conjunction होते हैं these are related to time, place, purpose, cause, result, condition, contrast और comparison. okay, these are the subordinate conjunction जो हमारे like there is a difference between coordinate और subordinate conjunction. okay, जो coordinate conjunction होते हैं उसके दोनों ही sentences are like उनको एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, वो complete होते हैं. but जो subordinate conjunction होते हैं इसको other sentence की बहुत need होती है, because उसके बिना ये क्या है, incomplete sound करता है. okay, let's discuss it with an example, then you will get the idea that what kind of subordinate clauses that we have. subordinate conjunction. okay, first for instance हमारे पास time से related है. whenever she speaks in English with her friends they become tongue tied. जब भी क्या होता है, वो अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करती है, उनकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है. ओके, टंग टाइड इट मीन्स कि वो बिल्कुल लाइक वो बोल नहीं पाते. okay, so here we have used this whenever she speaks in English with her friends they become tongue tied. okay, let's move on to the another that we have is we reached to doctor after she had left. okay, हम जब गए डॉक्टर्स के पास जब वो जा चुकी थी. here we have used this perfect tense, she had left. we reached to the doctor after she had left. next we have this third, please let me know her recovery situation as soon as possible. okay, तो यहाँ पर है कि मुझे मुझे जल्दी से जल्द बताना उनकी रिकवरी सिचुएशन के बारे में. okay, let's move on to another that we have is we have to wait for a while. these are the word जो हमें like टाइम के बारे में शो कर रहा है. for a while हो गया, as soon as हो गया. okay, here we have this as soon as और after, whenever. these are the words जो हमें क्या करते हैं, like टाइम से related information देते हैं. okay, now we are moving on to the place. अब कोई ऐसे words, ऐसे conjunction जो हमें place को show करते हैं, ठीक है. put that back where you have picked it. okay, यहाँ पर where जहाँ से, इसने हमें place जगह के बारे में बताया. put that back, इसको वहीं रख दो जहाँ से तुमने उसे लिया था.
Okay, next moving on to the another that we have is whenever I plan to go for a holiday, it failed miserably. Okay, wherever, here we have to use that wherever, not whenever, wherever. ओके तो ये जहाँ कहीं भी मैं लाइक प्लान करती हूँ जाने का, तो वो बहुत बुरी तरीके से फेल्ड हो जाता है. ओके, सो इट्स नॉट व्हेनेवर, इट्स वेरेवर, जहाँ पर भी. सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कॉज. अब ऐसे कंजंक्शन जो हमें कॉज बताते हैं. सिंस ही हैज़ बिन इन लंडन ही इज़ नॉट एबल टू मीट यू. क्योंकि ऐसा है कि वो लंदन में है, ठीक है, लंदन में रह रहा है, इसीलिए वो आपसे नहीं मिल पाएगा. तो हेयर वी हैव यूज दिस सिंस वर्ड, क्योंकि इसने हमें कॉज बताया कि क्या रीज़न है कि वो तुमसे नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वो लंदन में रह रहा है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर दैट वी हैव इज आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी फर्दर बिकॉज आई एम फेड अप विद दैट. मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती बिकॉज मैं उससे पक चुकी हूँ. ओके, सो हेयर वी हैव यूज बिकॉज. बिकॉज जो है वो भी हमारा कॉज के लिए हमें रीज़न बता रहा है कि मैं ऐसा काम क्यों नहीं करना चाहती. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड दैट वी हैव इज़ आई एम प्रिटी श्योर दैट अल्लाह विल हेल्प अस. कि मैं पूरी पक्की तरह से श्योर हूँ कि अल्लाह हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे. ओके, now we are moving on to the fourth that we have is contrast. अब contrast में हमारी दो सिचुएशन लाइक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन के बारे में बात होगा, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट चीज़ होगी. ओके, दो शी हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, though she has lots of money yet she shows everyone that she don't have. हालांकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो ऐसा शो करती है कि उसके पास कुछ है ही नहीं. ओके, हियर वी हैव यूज दिस दो एंड येट. दो और येट जो है ये कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन बता रहा है कि हमारे ऐसा है बट उसके अलावा वो दूसरी लाइक कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन दिखा रहा है. वो इतने अमीर होने के बाद भी ऐसा शो करती है कि उसके पास कुछ है ही नहीं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर दैट वी हैव इज ऑल्दो. अब ऑल्दो आई वाजंट फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड आई चूज़ टू मास्टर इट. कि हालांकि ऐसा था कि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं था या नहीं थी, फिर भी मैंने उसको मास्टर करने की लाइक उसको चूज़ किया कि मैं उसी को मास्टर करूँ. ओके, नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस. दोनों में हालांकि दोनों का है, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दो, तो दो हमारा यहाँ पर पेयर के साथ आया है लाइक दो और येट. बट ऑल्दो जो है इट कम्स लाइक सेपरेटली. बस ये अपने लाइक इसकी इसी से आपको पता चल रहा है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन दैट वी हैव इज़ अ कंजंक्शन. नाउ मूविंग ऑन टू दिस मैनर. अब जो मैनर है, अब मैनर इट मीन्स कि कोई काम जो है वो किस मैनर में हो रहा है. ओके, एज फार एज आई वॉज अवेयर ऑफ दैट स्टिल आई स्टक इन इट मिजरेबली. जहाँ तक मुझे लाइक उसके बारे में मैं अवेयर हूँ, फिर भी ऐसा होता है कि मैं उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाती हूँ. ओके, नेक्स्ट, एज यू सो सो शैल यू रीप. कि जैसा बोओगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कंपैरिजन दैट वी हैव इज़. अब इसमें हमारा कंपैरिजन शो होगा. शी इज़ नॉट सो इनोसेंट एज शी अपीयर्स. ओके, वो इतनी इनोसेंट नहीं है जितनी वो दिखती है. अनदर वी हैव दिस, इब्राहिम इज़ एज स्मार्ट एज हर मदर. इब्राहिम इतना स्मार्ट है like his mother. Sorry, Ibrahim is a boy, so here we have to use his, not her. There is a mistake, that will be his. Okay, let's move on to the another that we have is purpose. अब कोई like purpose show करने के लिए. I wake up early in the morning so that I complete my syllabus. मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी, क्यों? ताकि मैं अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकूं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड दैट वी हैव इज आई टुक एन ऑटो इन ऑर्डर दैट आई रीच्ड ऑन टाइम. मैंने ऑटो लिया ताकि मैं क्या करूं, टाइम पर पहुंच सकूं. इन ऑर्डर दैट. एट्थ दैट वी हैव इज कंडीशन. कोई कंडीशन बता रहा है. यू विल नॉट क्लियर द नेट एग्जाम अनलेस यू डू हार्ड वर्क.
तुम जब तक नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते. हेयर वी हैव यूज अनलेस. अब जो अनलेस वर्ड है उसके बाद यू आर नॉट सपोज टू डू एनी काइंड ऑफ नेगेटिव वर्ड. ओके, यू हैव टू मेक अनदर सेंटेंस लाइक पॉजिटिव, बिकॉज जो अनलेस वर्ड है दैट इज़ ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव वर्ड है. यू डोंट नीड टू ऐड नॉट आफ्टर दिस वर्ड. ओके, अनलेस यू डू हार्ड वर्क. Let's move on to the another that we have is suppose you will not find suitable spouse, then what will you do. Okay, तो here we have this word then. अगर तुम्हें नहीं मिलता है suitable spouse then तो फिर तुम क्या करोगे. Okay, next we have this result. अब result में our auntie speaks such a low voice that only she could hear her voice. कि हमारी जो आंटी हैं वो इतनी आराम से बोलती हैं कि सिर्फ वही हैं जिनको उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई आती है. ओके, सच अ लो वॉइस दैट ओनली शी. दैट ओनली यहाँ पर हमारा कंजंक्शन यूज हुआ है. लेट्स मूव ऑन टू हियर वी हैव दिस बी. राहुल वॉज सो क्लियर अबाउट द गर्ल दैट ही विल मैरी टू हर. ओके, वो पूरा क्लियर था, अच्छे से क्लियर था कि वो उसी से शादी करेगा. ही विल दैट ही. अब यहाँ पर वी हैव डन दीज लाइक टू काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द थर्ड दैट वी हैव इज को रिलेटिव कंजंक्शन. अब जो को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ये भी हमारे क्या करते हैं, रिलेट करने का काम करते हैं. ओके, दैट यूज़ इन पेयर. अब ये हमेशा हमारे पेयर में यूज़ होते हैं लाइक आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और. Okay, these are the words that we have already discussed, but let's understand with related to correlative conjunction. Okay, for instance first we have this, she is either study further or get married. या तो वो आगे पढ़ेगी और शादी हो जाएगी. We neither meeting nor talking on phone. हम ना ही मिल रहे हैं और ना ही फ़ोन पर बात कर रहे हैं. ओके, here we have a difference between either or और neither nor. अब जो either or होता है ये it means कि आप कोई दो पॉजिटिव चीज़ों में से, कोई भी दो चीज़ों में से एक चीज़ you have to choose it. ओके, और neither nor मतलब दोनों ही नहीं. ओके, I hope that it's clear. Let's move on to the another that we have is she is not only teaching in school but also doing work from home. Okay, not only and but also दोनों पेयर में यूज़ होंगे. वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाती ही नहीं है बल्कि घर से भी लाइक वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है. Okay, let's move on to the next that we have is I don't care whether you attend the class or not. Okay, whether और ये हम पैर में यूज़ कर रहे हैं. इट मीन्स कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम क्लास लो या ना लो. Okay, let's move on to the next that we have is though she is not well yet she arranged everything for guests. हालांकि वो लाइक वेल नहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी ऐसा उसने हर चीज़ गेस्ट के लिए अरेंज की. सो वी हैव यूज येट, दो एंड येट. These are the pairs that we can use in our correlative conjunction that tells us about something in contrast or something it is connected with first sentence with the another. और हमारे जो correlative sentences होते हैं ये sentences और like subordinate sentences, these are the sentences जो एक दूसरे के ऊपर depend रहते हैं. और coordinate sentences they are complete, they doesn't depend on each other, but फिर भी हमें like express करने के लिए अपने thoughts को we have to make it with conjunctions. Now I hope that it is clear. If it's clear, if you understand the conjunction. Exercise of conjunction. First choose the correct conjunction from the option given. Okay, जो भी options we have given तो आपको इन्हीं options में से कुछ select करना है कि which one would be the correct answer. First, she worked hard dash she could pass the examination. क्या correct होगा? Although, so that, unless, whereas. First understand the sentence. She worked hard. उसने hard work किया था. क्यों किया था? What was the purpose? ओके, क्या रिज़ल्ट निकला उसके हार्ड वर्क करने का कि क्या था? शी कुड पास द एग्जामिनेशन. ओके, तो हेयर इट इज़ शोइंग द पर्पस.
कि कोई काम जो है वो उसने हार्ड वर्क किया, वो किस वजह से किया था। ओके, सो उसके लिए वी यूज़ दिस सो दैट। बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो बी वुड बी द करेक्ट। शी वर्कड हार्ड so that she could pass the examination. Okay, let's move on to the another that we have is second, I will wait here dash you return. Okay, now we have some options that are until, because, but, yet. अब इसमें आपको सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि मैं आपका वेट करूँगी जब तक आप वापस नहीं आते। ओके, तो इट इज़ टेलिंग अबाउट द टाइम। तो जब हमें टाइम बताया जा रहा है तो वी कांट यूज़ बिकॉज, बट और येट, ठीक है। येट हम यूज़ करेंगे बट जब उसमें दे रखा हो कि आने लाइक अभी तक के लिए, बट वी यूज़ दिस until, that is a A option. Until would be the correct. I will wait here until you return. Okay, let's move on to the third that we have is dash he was tired, he continued working. अब चले डैश में हमारा पहले तो सेंटेंस समझते हैं कि वो टायर्ड था, ठीक है, हालांकि वो टायर्ड था फिर भी उसने काम जो है वो कंटिन्यूड रखा था, ठीक है, तो टायर्ड था। अब बिकॉज जो है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो है वो रीज़न के लिए होता है, बट यहाँ पे कोई रीज़न जैसी चीज़ नहीं है। थर्ड वी हैव सिंस। सिंस भी हम यूज़ करते हैं जब हमें लाइक टाइम को शो कर, हालांकि के लिए वी कैन यूज़ जब कॉज पता चल रहा है, ठीक है, तो इसमें कॉज कभी वो नहीं है। और एज हम यूज़ करते हैं जब हमें लाइक एज आएगा, क्योंकि यहाँ पर है हालांकि वो टायर्ड था फिर भी उसने अपने काम को जारी रखा था। ओके, तो हेयर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द बी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ दैट वी हैव इज़ यू मस्ट हरी अप डैश यू विल मिस द ट्रेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से आपको कंडीशन बताई जा रही है, तुम्हें ज़रूरत है, लाइक यू मस्ट हरी अप, आपको जल्दी करनी पड़ेगी, और यू विल मिस द ट्रेन, ठीक है, तो द करेक्ट आंसर वुड बी ए, दैट इज़ और, यहाँ पर और होगा। ओके, लेट्स नाउ यू हैव टू डू ऑल द ब्लैंक दैट वी हैव हेयर इज़, प्लीज़ राइट द आंसर्स ऑफ दीज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। I hope that you like it. Please like, share and subscribe.